اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے معزز سامعین، اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ آپ خوش خرم ہوں گے. آج جس مضمون پہ آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے کنولژنس ان نیو بارن، تشنج نوزائید. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو اس کیفیت سے بعض بچوں کو گزرنا پڑتا ہے. یہ بیماری کس طریقے سے ہوتی ہے، جس میں جھٹکا ہوتا ہے، اس کی کیا ماہیت ہے، کیا اسباب ہے، کیا علاج ہے، آگے کی سلائیڈوں میں انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے. تو سب سے پہلے تشنج نوزائید کی تعریف کیا ہے. نوزائیدہ عموماً پہلے 28 دن، ہم نوزائیدہ سے مراد 28 دن سے جو کم کے بچے ہوتے ہیں ان کو نیو بورن یا نوزائید کے نام سے طبی اصطلاح میں جانتے ہیں. تو نوزائیدہ عموماً پہلے 28 دن میں دماغی خلل کی وجہ سے ہونے والی غیر ارادی جھٹکے دار حرکات، یا غیر ارادی، اس میں کوئی ارادہ نہیں کہ اپنے جسم کو جھٹکا دیا جائے، دماغی خلل کی وجہ سے. تو نوزائیدہ میں جس کی عمر 28 دن سے کم ہے، دماغی خلل کی وجہ سے ہونے والے غیر ارادی جھٹکے دار حرکات یا غیر معمولی حرکات کو نیونیٹل کنولژنس کہتے ہیں. نیونیٹل سیجرز آر abnormal involuntary movements or behavioral change due to disturbed electrical activity in newborns occurring within first 28 days. اس کو ذرا سا آپ ہائی لائٹر. تو اس میں پہلے کیا ہے، یہ دماغی خلل ہے. کیا ہے؟ دماغی خلل کی وجہ سے برین ڈسفنکشنس، غیر ارادی والنٹری اور انوالنٹری دو طریقے کے آپ کے موومنٹ ہوتے ہیں. تو انوالنٹری ہے، غیر ارادی ہے، حرکات یا غیر معمولی حرکات کو ہم جو ہے کہتے ہیں. تو اس کے 3 کریکٹرسٹکس ہو گئے. نمبر 1 کریکٹرسٹکس یہ جو ہے دماغی خلل ہے. پہلا کیا ہے؟ دماغی خلل ہے. دوسرا کیا ہے؟ یہ جو ہے غیر ارادی ہے. اور تیسرا اس میں کیا ہوتا ہے؟ جھٹکا ہوتا ہے، حرکات ہوتے ہیں. یہ these are the 3 main characteristics of convulsions. نوزائیدہ جن کی عمر 28 دن سے کم ہے ان کو ہی ہم نوزائیدہ کے درجے میں شمار کرتے ہیں. اور اس میں دماغی خلل پیدا ہو اور دماغی خلل کے نتیجے میں غیر ارادی جھٹکے دار حرکات ہو، جھٹکا آئے، اس طریقے سے جو ہے جس پورا کانپنے لگتا ہے، اس کو ہم جو ہے کنولژنس کہتے ہیں. اب یہ دماغی خلل کیوں پیدا ہوتی ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم دماغی خلل کو نہیں سمجھیں گے کہ کیوں کر یہ خلل ہوتا ہے، تب تک تشنج کا پورا مواد ہمارے دماغ میں نہیں بیٹھے گا. آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ کیوں دماغی خلل پیدا ہوتی ہے. تھوڑے دیر کے لیے آپ سن کیجیے. نیونیٹل کنولژنس اکثر کسی خطرناک بیماری، بنیادی بیماری کی علامت ہوتا ہے. کیا ہے یہ؟ آپ کا ہائپاکسیا، قلت دم، قلت آکسیجن کی کمی ہے، انفیکشن پلاتیا یا میٹابولک ڈس آرڈر، استحالہ کی کمزوری کی وجہ سے. نیونیٹل کنولژنس آر میڈیکل ایمرجنسی اینڈ آفن انڈیکیٹ سیریس انڈرلائنگ پیتھولوجی. ایک بیمار ہے، کیا ہے؟ HIE. اس کو یاد رکھیے، HIE کیا مطلب ہے؟ ہائپاکسی اسچیمک انسیفلوپیتھی. آپ بس تھوڑے دیر کے لیے جو ہے صبر و سکون کے ساتھ سنتے رہیے. اس کو ہم بہت اچھی طرح سے انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے کہ ہائپاکسک کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ہائپو ایک لفظ ہوتا ہے، ہائپر جس میں زیادتی ہوتی ہے، ہائپو میں کمی ہوتی ہے. اسچیمک آکسیجن کی کمی کی وجہ سے قلب کے افعال میں کمی آ جاتی ہے، جس سے آکسیجن دماغی بافتوں کو کم مل پاتی ہے. تو دماغ کے باپ
बाप जो है मजरूह हो जाते हैं और उनकी कारकर्दगी या फ़ालियत में फ़र्क पड़ जाता है, जिसको हम HIE हाइपॉक्सिक इस्चीमिक इंसेफेलोपैथी के नाम से जानते हैं। इज़ ए टाइप ऑफ ब्रेन इंजरी, एक तरीके का यह ज़ख्म ब्रेन इंजरी है। इन ए न्यू बॉर्न काज बाई लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की कमी जिसकी वजह से ये लफ्ज़ हाइपॉक्सिया आ रहा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। और लैक ऑफ ऑक्सीजन कैसे होगी? एंड रिड्यूस ब्लड फ्लो, जिसे हम इस्चीमिया कहते हैं। तो दीज टू आर द मेजर रीजन्स फॉर HIE एंड HI इज़ द मेजर रीज़न फॉर द कन्वर्सन। इसका मतलब कन्वर्जन्स का जो बुनियादी सबब है वो HIE है, हाइपॉक्सिक इस्चीमिक इंसेफेलोपैथी। और HIE का बुनियादी सबब जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिड्यूस ब्लड फ्लो है। ये दो बातों को समझ लेने के बाद आइए हम आगे चलते हैं। अब इसी को जिसको मैंने कहा था कि ये जो है आपको हाइपॉक्सिक इस्चीमिक इंसेफेलोपैथी, इंसेफेलोपैथी क्या होता है? ब्रेन के टिश्यूज़ का डिसफंक्शन, नॉर्मल फंक्शन न होना, इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल या डिसफंक्शनलिटी ऑफ द ब्रेन टिश्यूज़। अब जो है हम जानते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए, आपको अच्छी तरह से एहसास है कि जिस्म के हर खलियात को, हर टिश्यूज़ को एडिक्वेट वाफिर मकदार में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ये बुनियादी लाइफ साइंस का वसूल है। ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ बॉडी नीड्स एडिक्वेट सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अब ये ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? ऐसा तो है नहीं कि सिलेंडर आप नाक में लगा दीजिए और सीधे पहुंच जाएगा। पहुंचता है जब आपको हाई प्रेशर पर आपको देते हैं, लेकिन नेचुरल तरीक़े पर आप जो है जो ऑक्सीजन नाक से लगाते हैं उसका कभी गौर किया है कि वो कितना कॉस्टली होता है? 5 से 7 हज़ार रुपये NIUC नेशनल न्यूनेटल इंसेंटिव केयर यूनिट का पर डे का चार्ज होता है। ये हम 2-3 साल पहले के रेट बता रहे हैं, जब हमको खुद इससे साबका पड़ा था। अब जो है हम समझते हैं कि उससे ज़ायद ही हो गया होगा। और जब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जैसे आपको हमने कहा था कि हाई प्रेशर पर ऑक्सीजन जो है नाक के ज़रिए मरीज़ को दी जाती है, तो उसके भी चार्ज 3-4 हज़ार रुपये पर डे आ जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन, कितने वक्त के लिए हम उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं। लेकिन कुदरत ने इतनी वाफिर मकदार में हमारे बैरूनी फ़िज़ा, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ऑक्सीजन दे रखी है। ये ऑक्सीजन नाक से होते हुए हमारे कहाँ तक पहुँचती है? फेफड़ों तक पहुँचती है। और फेफड़ों में जो रिटर्न ब्लड होता है, वेनस रिटर्न ब्लड होता है, पहले वो आता है आपको राइट एट्रियम में। अब इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो इस तरीके से ये हार्ट आपका है, और हार्ट के ये आपके मान लीजिए 4 चैम्बर आपके हैं, और 4 चैम्बर में ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, और आपका ये राइट एट्रियम है, और ये आपका राइट वेंट्रिकल है। और जो वेनस रिटर्न ब्लड होगा वो कहाँ से? जिसके मुख्तलिफ हिस्सों से होते हुए यहाँ पर आपको राइट एट्रियम में आएगा, फिर ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए राइट वेंट्रिकल में आएगा, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए आपको कहाँ चला जाएगा? लंग में चला जाएगा। मान लीजिए ये हमारा लंग है, तो फिर ये आपको यहाँ से ब्लड जो है, अब थोड़ा सा हमें कलर चेंज कर लेने दीजिए, पॉइंटर ये पेन लेने दीजिए, तो यहाँ से उठ करके ये ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी से सीधा लंग में जाता है।
और लंग में क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन गेट्स इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स आउट। ये जो है CO2 क्या होगी, बाहर निकलेगी, और ऑक्सीजन क्या होगी, अंदर आएगी। और यही ऑक्सीजन फिर आपको ये जो है पल्मोनरी वेन के ज़रिए आपको लेफ्ट एट्रियम में आएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगी, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एओर्टा से होते हुए ये आपको जिसके मुख्तलिफ खलियात को चली जाएगी। ये आपको एओर्टा जो है आपको इस तरीके से, तो ये पूरा जो है आपको ये वेनस रिटर्न ब्लड था। ये आपको राइट, ये क्या नाम है, फिर से लिख लीजिए, आपको राइट एट्रियम, और ये आपका क्या है, राइट वेंट्रिकल, और ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो जो जिससे यूज्ड ब्लड होगा रीऑक्सीजनेशन के लिए, ये वेनस सप्लाई से, जिसको इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा दोनों शामिल है, इससे होते हुए कहाँ से आएगा, राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में यहाँ पर एक वाल्व होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ये क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। यहाँ आ गया, और फिर यहाँ से आपको पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए यहाँ पर चला गया आपको लेफ्ट में, जहाँ इसका जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन जो है एल्वेओलाई में डिफ्यूज्ड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। फिर उसके बाद ये पल्मोनरी आपको जो है वेन्स है। आप जानते हैं कि वेन्स में हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जिसमें प्योर ब्लड होता है, प्यूरिफिकेशन के बाद आता है। फिर उसके बाद यहाँ आया, और फिर उसके बाद ये एओर्टा से जिसके मुख्तलिफ खलियात को चला गया। अब इसमें कहीं भी पुअर सर्कुलेशन हो रहा है। इफ ब्लड फ्लो ऑफ द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ ब्लड इज रिड्यूस्ड, खून के बहाव की शरह जो ही कम होगी, इसका नतीजा ये होगा कि खून कम मिक़दार में जिस्म की खलियात को मैसर होगा, और जब कम आपको ऑक्सीजन की फराहमी होगी तो उसमें फिर उसकी ज़िंदगी की सारी रौनक बर्बाद हो जाएगी, और वो अपने अफ़आल को सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाएंगे। तो जब वाफिर मिक़दार में ज़रूरत के मुताबिक किसी भी सेल को, खलियात को ऑक्सीजन मिलती है, तो इसको हम कहते हैं ब्लड परफ्यूज़न। जिस तरीके से एक काश्तकार फसल लगाता है खेतों में, और जब हर पौधे की जड़ों में वाफिर मिक़दार में पानी और ग़िज़ा दोनों मराहल फराहम की जाती है, पानी भी फराहम किया जाता है और ग़िज़ा भी फराहम की जाती है, ग़िज़ा इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिसको NPK के नाम से जानते हैं, यानी नाइट्रोजन भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम NPK चाहिए, तो वो उसके ग़िज़ा है। तो पानी भी जो है और ग़िज़ा दोनों जब दी जाती है तो पौधा सब शादाब खूब लहलहाते हुए खेत पे ऊपर बढ़ता चला जाता है, फलता फूलता है, और उसके से हम दाने हासिल करते हैं। उसी तरीके से हमारे जिस्म में देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ द cells and they need adequate amount of oxygen for the normal functioning. उनके सही कारकर्दगी के लिए एक निश्चित मात्रा में, एक न्यूनतम थ्रेशोल्ड में उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। जब ज़रूरत होती है तो ये किस तरीके से, उसी आप
آپ کو بلڈ کے ذریعے. بلڈ از دا کیریئر آف آکسیجن ایز ویل ایز دا نیوٹرینٹ. دیٹ از دا نیوٹرینٹس اینڈ oxygen both are being supplied by this circulating blood, and if this circulation anyhow किसी भी तरीके से is reduced, if this circulation is reduced, and if circulation is reduced, the cells of the tissues are not able to receive adequate amount of oxygen. تو یہی کچھ اس میں ہوتا ہے. آپ کو اس نے اس لیے اتنا چھیڑا کہ آگے کوئی گفتگو آپ کو سمجھنی آسان ہو جائے. تو پہلا کیا کہہ رہا ہے؟ برتھ ایسفیکسیا، نوزائیدہ پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد لو کارڈیاک آؤٹ پٹ ہو رہا ہے. کارڈیاک آؤٹ پٹ کیا ہوتا ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے. کارڈیاک آؤٹ پٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو volume of blood in left ventricle, volume of blood in left ventricle, اور یہاں سے جو ہے آپ کو کہاں نکل رہا ہے؟ پلمونری ایورٹا میں جا رہا ہے، پلمونری والو کو کراس کر کے. تو اب یہاں پر جو ہے یہاں مان لیجیے کہ V2 ہے اور یہ V1 ہے. اسی کے ریشیو کو ہم کارڈیاک آؤٹ پٹ کہتے ہیں. یعنی کتنا خون لیفٹ وینٹریکل میں جمع ہے اور اس کے نسبت ریشیو میں کتنا خون باہر پمپ کر کے خلیات کے لیے بھیجا جا رہا ہے. تو بلڈ آؤٹ اینڈ بلڈ آپ کو یہ جو ہے آؤٹ، یہ والوم آف بلڈ ہے وچ از آؤٹ، جو باہر نکل رہا ہے. اور یہ جو ہے وہ ہے جو پورا آپ کو یہاں پر لوٹ کر کے آیا ہوا ہے صاف شفاف ہو کر کے. اس کا کون سا حصہ؟ مان لیجیے کہ یہاں 5 لیٹر بلڈ آیا اور جو ہے 3 لیٹر ہی جو ہے بلڈ اوپر جو ہے گیا. تو یہ 3/5 کیا ہو جائے گا؟ اس کا کارڈیاک آؤٹ پٹ ہو جائے گا. تو یہ جو ہے کارڈیاک آؤٹ پٹ ڈراپ کر جاتا ہے لو. کارڈیاک آؤٹ پٹ لو کا سمبل جو ہے نیچے کی طرف دیتے ہیں. تو جب ایسفیکسیا کی بیماری ہوتی ہے یعنی سانس صحیح طریقے سے نہیں لے پاتا ہے بچہ، تو لو کارڈیاک آؤٹ پٹ ہو جاتا ہے. اب یہ کیوں کر ہوتا ہے؟ پرولانگڈ اور آبسٹرکٹیڈ لیبر، جو اس کی ڈیلیوری ہے وہ کافی تکلیف شدہ ہے اور لمبے وقت میں ہو رہی ہے، وہاں پر آبسٹرکشن ہے. تو اس سے ماں سے بچے کو صحیح طریقے سے آکسیجن نہیں مل پاتی ہے. اس کا بلڈ سرکولیشن سیز ڈاؤن تو ہم نہیں کہہ سکتے، کم ہو جاتا ہے. یا پلیسنٹل ابرپشن، پلیسنٹا ابرپٹلی جو ہے ٹوٹ جائے، سیپریٹ ہو جائے. یا کارڈ جو نال ہے، برتھ کینال ہے، وہ پرولیپس ہو جائے، کارڈ کمپریشن جسے کہتے ہیں. اور یہ تینوں کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہائپوکسیا، آکسیجن کی کمی ہو جائے گی. اب جب آکسیجن کی کمی ہوگی تو ہارٹ فنکشنز ڈراپ، ہارٹ کے افعال میں کمی آ جائے گی. اور برین بلڈ فلو فالس، دماغ میں بھی کم مقدار میں خون پہنچ پائے گا. اور جب کم مقدار میں پہنچے گا تو آکسیجن بھی کم ہوگا. اور یہی جو ہے وجہ بنے گا آپ کو ہائپوکسی، ہائپو اسچیمک انسیفیلائٹس کا. یہاں دیکھیے 1 لائن سمری کیا لکھا ہے کہ نیو بورن اسچیمیا از مینلی کاسڈ بائی سسٹمیٹک ہائپو پرفیوژن. ہم جب پورا جتنی ہماری غذا کی ضرورت ہے اتنی غذا ہم کو میسر ہو جاتی ہے تو ہم درست اور توانا ہوتے ہیں، اچھلتے کودتے گاتے چلاتے شور مچاتے سب کچھ خوشحال رہتے ہیں جب ہم سیراب رہتے ہیں غذا سے. تو اسی طریقے سے خلیات کی سیرابی منحصر کرتی ہے غذا اور آکسیجن پر. اور غذا اور آکسیجن کی فراہمی خون کے سرکولیشن، چلتے ہوئے خون کی وجہ سے ہوتی ہے. اب جب یہ چلتے ہوئے خون کی مقدار کم ہو جائے گی تو ہوا، آکسیجن اور
ग़िज़ा दोनों कम हो जाएगी। अब जब कम हो जाएगी तो मुरझा जाएंगे, वो अपना उनका नॉर्मल फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो अब ये फ्रॉम बर्थ, ये एस्फिक्सिया जो हमने बताया पुअर। दूसरा सेप्सिस से भी हो सकता है, जिसमें डिलीवरी के वक्त बहुत ज़्यादा खून ज़ाया हो जाता है, तो शॉक सेप्सिस, ब्लड लॉस, एनीमिया, क्रिटिकल हार्ट डिसीज और पल्मोनरी हाइपर प्रेशर जो है, जिसको पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, इसको अभी हम आगे जा कर के बताएंगे। तो पहला वजह यह है कि बर्थ एस्फिक्सिया, जिससे हाइपोक्सिया क्रिएट होती है, और इसका नतीजा ये होता है कि दिमागी वाफ्तों में खून की फराहमी कम हो जाती है और उनके अफ़ाल में कमी आ जाती है। दूसरा हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर गिर जाता है। कैसे? या सदमा जिसे आप कहते हैं, सेप्सिस, सेप्टिक शॉक, सीवियर ब्लड लॉस, बहुत ज़्यादा खून ज़ाया होता है। फीटो मैटरनल हीमोरेज, जो बच्चा और माँ के बीच में जो हीमोरेज होता है, खून का ज़िया होता है, उसकी वजह से सदमे की भी हालत हो सकती है, और इस सदमे से भी हाइपोटेंशन हो जाता है, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूज़न। फिर उसके बाद डिहाइड्रेशन, पुअर इनटेक, लेस कॉमनली अर्ली, तो इससे लो बीपी और लो सेरिब्रल परफ्यूज़न। फिर दिमागी वाफ्तों को कम मिक़दार में ऑक्सीजन की फराहमी होगी। परफ्यूज़न से मुराद ऑक्सीजन की फरावानी और फराहमी से है। फरावानी है कि नहीं और उसको दस्तयाब हो रही है कि नहीं। अगर मुकम्मल दस्तयाबी हो रही है, जिस तरीके से एक आपके काश्तकार के फसल के हर पौधे की जड़ों को वाफिर मकदार में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मिल रहा है, फसल लहलहाती है, और उसी तरीके से हमारी खलियात को भी ग़िज़ा और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब ग़िज़ा और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इसी को हम हाइपोक्सिया कहते हैं, और इससे जिस्म के किसी भी खलियात की कारकर्दगी में खलल पड़ता है, और ख़ुसूसन चूँकि हमारा दिमाग बहुत ही नाजुक और नरम है, जिससे पूरे जिस्मानी अफ़आल कंट्रोल होते हैं, मुनज़्ज़म होते हैं, और ये ब्रेन में भी जो है कि खलियात में फसाद बर्पा हो जाता है, यानी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, ग़िज़ा नहीं मिल पाती है, उनकी कारकर्दगी नहीं होगी, और इसीलिए बेचैनी होगी और बच्चा जो है तड़फड़ाएगा, जिसको हम जो तसन्नुज के नाम से जानते हैं। इस तरीके से जो है सीवियर एनीमिया, ब्लड लॉस होगा तो उसको हम एनीमिया कहेंगे। इवन फ्लो एग्जिस्ट, अगर फ्लो हो भी रहा है लेकिन क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की डिलीवरी कम हो रही है, तो ये आपको इवन फ्लो एग्जिस्ट, अगर फ्लो हो भी हो रहा है तो ऑक्सीजन की डिफिशेंसी बिकम्स इनएडिक्वेट, जो है ऑक्सीजन की, हमने कहा ना कि फराहमी भी हो और दस्तयाबी भी हो। गल्ला आपके घर में आ जाए और आपको ना मिले, ये भी तो हो सकता है कि ताला चाबी लगा हुआ हो, तो उसी तरह से ऑक्सीजन जो है फ्लो हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजन है लेकिन वो दस्तयाब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एनीमिक ब्लड हो गया है, खुद उसमें आयरन या ऑक्सीजन की कमी हो गई है, या कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ हो, जिसे हम आपको क्रिटिकल सीज जो है कहते हैं, रिड्यूस सिस्टमेटिक आउटपुट, रिड्यूस सेरेब्रल फ्लूइड फ्लो। तो और दूसरा नेक्स्ट आपको है PPHN, इसको कहते हैं परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ये जो आपको हमने फिगर दिखाई थी, अगर याद होगा तो इस फिगर को, जिसको हमने ये किया था, ये यहाँ से उठ करके ये इस तरीके से लंग्स में जा रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी जो है कहते हैं। क्या है? पल्मोनरी आर्टरी है जो लंग में जा रही है, इन पुअर ऑक्सीजन डिप्राइव ब्लड को लंग में ले जा रही है ऑक्सीजन हासिल करने के लिए। तो जब इसमें जो है रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसके जो है वैस्कुलेचर्स और वेसल्स अगर कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई है, सिकुड़न पैदा हो गई है, तो भी जो है ये खून जो है यहाँ से वेनस रिटर्न से राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल में आया है,
और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए जो यहाँ पर जाना है वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि बिकॉज देयर इज ए रेजिस्टेंस, इसके कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है। तब भी जो है आपको पुअर ऑक्सीजनेशन होगा, स्ट्रेन और हार्ट पड़ेगा, लो ऑक्सीजन डिलीवरी होगी और वीक परफ्यूजन टू द ब्रेन होगा। और फाइनल आउटकम क्या होगा? हाइपॉक्सिया होगा, ब्रेन इस्चीमिया होगा, HI हाइपॉक्सिक इस्चीमिक इंसेफेलोपैथी और नियोनेटल कन्वल्सन। तो एक लाइन में अगर इसको समझना चाहें कि कन्वल्सन या तसन्नुज क्यों होता है, तो इसका बुनियादी सबब दिमाग की खलियात को वाफिर और ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन फराहम नहीं हो पा रही है। एक सिंपल 1 पॉइंट जो है रीज़न है कि ब्रेन टिश्यूज आर नॉट एबल टू रिसीव एडेक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई दे आर पुअरली परफ्यूज्ड। सिंचाई तो हो रही है लेकिन पानी रुक रुक के आ रहा है, कम आ रहा है। अब जैसे किसान से आप पूछिए, पूरा जो है जब कहते हैं कि भर करके नाली चलती है, पूरा अच्छी तरह से पानी जब पूरे क्यारी को भर देते हैं, लबलबा देते हैं, उसी तरीके से जब खूब जो है ये जो है जैसे ये पाइप जो हमारे शरीर जो हमारी आर्टरीज है और वेन है, ये क्या है? पाइप्स हैं। और जब ये डायलेटेड होती हैं, पूरा इनमें भर करके खून चलता है और भर करके जो है क्या कहते हैं, यहाँ राइट वेंट्रिकल से आपको लंग्स में आया और लंग्स से जो है पल्मोनरी वेन से आपको यहाँ आया, फिर उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी से होती है पूरे जिस्म को, चाहे दिमाग हो चाहे लोअर सिस्टम हो, सबको जो है उसने ऑक्सीजन पहुँचाया। लेकिन जब ये पुअर परफ्यूजन ऑफ द ब्लड होगा तो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कम होगा। तो ये दीज आर द रीजन्स। एक लाइन में रीज़न ऑक्सीजन की कमी। अब उस ऑक्सीजन की कमी कैसे कैसे होती है? दीज आर द 5 पॉइंट्स। नंबर 1 बर्थ एस्फेक्सिया, नंबर 2 आपको हाइपोटेंशन, एंड नंबर 3 सीवियर एनीमिया, एंड 4th कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, एंड 5th PPHN पल्मोनरी persistent pulmonary hypertension of newborn। तो 1 लाइन आंसर आपका है कि पुअर ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्रेन टिश्यूज। नंबर 2, हाउ इट हैज़ बिकम द पुअर सप्लाई? बिकॉज ऑफ द ब्रेथ एस्फेक्सिया, बिकॉज ऑफ द हाइपोटेंशन और शॉक्स, बिकॉज ऑफ द सीवियर एनीमिया, बिकॉज ऑफ द कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज, बिकॉज ऑफ द persistent pulmonary hypertension। एक बार फिर सुन लीजिए, तसन्नुज का वाहिद वजह एक लफ्ज़ में अगर बयान करना है तो पुअर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन टिश्यूज। दिमाग के बातों को ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन दस्तयाब न हो पाना। अब ये ऑक्सीजन ज़रूरत के मुताबिक दस्तयाब क्यों नहीं हो रही है? इसके 5 वजह दिए गए। नंबर 1 बर्थ एस्फेक्सिया, जिसमें सांस लेने में नवजायदा को दिक्कत आती है। दूसरा हाइपोटेंशन या सदमा। तीसरा सीवियर एनीमिया। चौथा कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, एंड 5वां परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन। आइए आगे हम देखते हैं। अब इसके जो है टाइप्स ऑफ ये जो है नियोनेटल सीजर क्या होते हैं? सबटिल, ये सबसे आम होता है। लिप स्मैकिंग, बार बार जो है ये जो है होंठ जो है उसके हिलेंगे, चीविंग चबाएगा, आई डिविएशन, आँख जो है उसकी इधर उधर नाचती रहेगी, एपनिया, सांस रुक जाएगी, बाईसाइक्लिंग मूवमेंट, आपको दाहिने बाएं जो है वो अपने जिस्म को घुमाएगा जो है। क्लोनिक, ये रिदमिक जर्स होता है, फोकल और मल्टीफोकल। टोनिक, सस्टेन्ड स्टिफनिंग, इसमें टोन में होती है, जैसे आप करते हैं इस तरीके से जब आप करते हैं तो टोन में मसल होती हैं। और माइक्रोक्लोनिक। तो ये 4 तरीके के आपके अक़साम हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। सबटिल, क्लोनिक, टोनिक एंड मायोक्लोनिक। न्यूबॉर्न सीजर कैन बी नॉन क्लासिक, नॉट टिपिकल टोनिक क्लोनिक लाइक एडल्ट। एडल्ट से थोड़ा मुख्तलिफ होते हैं, हल्का होता है, वो उनकी जैसी जसामत होती है उसके हिसाब से उसके ज़र्फ़ की कैफियत होती है।
अब ये कॉजेज जो है, यही आपको जो है हमने पहले बताया था, HIE आपको याद होगा। HIE क्या है? यही जो है आपको हाइपोइस्चेमिक इंसेफेलोपैथी, यानी दिमाग के बाफ्तों का सही कारकर्दगी न होना, फ़आल न होना, इसको हम HIE के नाम से जानते हैं, हाइपॉक्सिक इस्चेमिक इंसेफेलोपैथी। बर्थ हिस्ट्री मोस्ट कॉमन। उसके बाद हमने कहा मेटाबॉलिक इस्तेहाला, जिसे हम कहते हैं, ये भी सही तरीके से नहीं अंजाम हो पाएगा क्योंकि अभी उसके अंदर कोई ताकत ही नहीं हुई। हाइपोग्लाइसीमिया, इसमें शुगर लेवल कम हो जाता, हाइपोकैल्सीमिया, इसमें कैल्शियम कम हो जाता, हाइपोमैग्नीसिया, इसमें मैग्नीशियम कम हो जाता, सोडियम इम्बैलेंस अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो इसको हाइपर नेट्रीमिया कहते हैं, और कम हो जाता है तो हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। दिस इज हाइपो मीन्स लोअर, ये हो जाएगा, और जो है और हाइपर में अप हो जाएगा सोडियम का लेवल। तो ये सब मिनरल्स हैं यहाँ, ये तो आपका ग्लूकोज है, लेकिन कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम, दीज आर द मिनरल्स। ये भी बॉडी के लिए ज़रूरत है। एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ मिनरल इज आल्सो नीडेड एंड दिस इज इंक्लूडेड इन द ग़िज़ा और डाइट। तो ये भी नहीं मिलेंगे। तो ये मेटाबॉलिक कॉजेज जो है, तो पहला तो HIE हाइपॉक्सिक इस्चेमिक इंसेफेलोपैथी, उसके बाद ये आपको मेटाबॉलिक इस्तेहाला के अमराज, इन्फेक्शन तादिया जिसको आपने सेप्सिस पहले पढ़ा, इंट्राक्रैनियल हीमोरेज, उसके दिमाग के बाफ्तों में खून का रिसाव भी हो सकता है क्रैनियम में, इसीलिए इसको इंट्राक्रैनियल हीमोरेज विद इन द क्रैनियम। हाइपरबिलरूमिया, बिलरूमिन की जो है मकदार बढ़ जाए, जो जॉन्डिस वगैरह की होती है, और जब बच्चा पैदा होता है तो न्यूबॉर्न जॉन्डिस कैसे होता है, ये पहले ऑलरेडी हम टेस्ट कर चुके हैं। कर्नी इक्टेरस को भी मैंने डिस्कस किया था कि ये जो है बिलरूबिन जा कर के बाफ में जमा हो जाती है, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलरूबिन होती है जाके टिश्यूज़ में जमा हो जाती है, तो ये बहुत ख़तरनाक बीमारी बन जाती है, जो इसीलिए उसको फोटोथेरेपी फ़ौरन दिया जाता है। और आपको पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के बारे में हमने अच्छी तरह से बताया था। इन न्यूबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म जो है, एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, वही जो है मेटाबॉलिज्म इस्तेहाला के पूरे मराहिल सही तरीके से नहीं होंगे, जिसमें यूरिया साइकिल डिफेक्ट जो है रेयर बट फेटल जो है, अगर यूरिया साइकिल डिफेक्ट हो गई तो ये काफ़ी नुकसानदेह होती है। ड्रग विड्रॉल, मैटरनल ड्रग्स, ओपाइड्स वगैरह है, पुअर वेनस रिटर्न और पुअर, ये दोनों में फ़र्क दिखाया गया है। जैसे आपने कहा कि सदमा से भी जो है ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, और आपने कहा था परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन से भी ऑक्सीजन कम हो जाएगी, लेकिन दोनों के मैकेनिया में फ़र्क है, मेथोडोलॉजी में फ़र्क है। इसमें क्या वेनस रिटर्न कम होगा, जो हमने कहा था, ये आप एक बार फिर फिगर देख लीजिए, जो यहाँ से लौट करके आ रहा था, ये जो आपका वेनस रिटर्न ब्लड था, ये जो है कम है, और फिर उसके बाद तो अब यहाँ पर प्रीलोड कम होगा, फिर राइट वेंट्रिकल जो आपका वहाँ से आउटपुट कम हो जाएगा, पल्मोनरी ब्लड फ्लो कम होगा, ऑक्सीजन पिकअप इन लंग्स जो है भी कम हो जाएगा, इसको हाइपॉक्सीमिया का लोअर ऑक्सीजन कह दिए। लेकिन जो है तो ये पुअर वेनस रिटर्न की वजह से ऑक्सीजन में कमी हो रही है, जो जिस्म के यूज्ड ब्लड है, यानी जो खून खलियात को मैसर करा दिया गया था और खलियात में उस खून में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लिया था, इस्तेमाल के बाद रीजनरेशन के लिए ऑक्सीजन इनरिचमेंट के लिए लौट करके आपको फिर कल्ब में आता है, और राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, फिर उसके बाद लंग में। तो ये पूरे मराहिल को हम कहते हैं ये वेनस रिटर्न पुअर है, जिससे भी ऑक्सीजन कम सप्लाई होती है। लेकिन पल्मोनरी परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपर टेंशन से क्या होता है कि पल्मोनरी आर्टरी में जो है आपका रेजिस्टेंस होता है। ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, ये आपको पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड कहाँ से आ रहा है भाई, राइट
वेंट्रिकल से आ रहा है, राइट, वेंट्रिकल से आ रहा है, और यहाँ से होकर के फिर कहाँ जा रहा है, आपको लंग में जा रहा है फॉर ऑक्सीजनेशन। तो अब जो इसके पहले का मरहला है वो तो पुअर वेनस है, जब कम आएगा तो कम यहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन यहाँ से आता है ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन में। इसमें और इसमें फ़र्क यही है कि यहाँ तो कम खून ही आता है और कम लंग तक पहुँचता है, लेकिन यहाँ पर आता बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी में रेजिस्टेंस होता है, ब्लड वेसल गेट रिड्यूस। ये नॉर्मल अगर हम मान लीजिए ये आपको, अगर इसको हम नॉर्मल आर्टरी मान लें तो वहाँ पर क्या होगा, ये आर्टरी गेट कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब अब जो है इसमें बस बहुत ही कम जो है स्पेस बाकी रह गया। तो जब कम स्पेस है, नाली का स्पेस कम हो गया, तो अब उसमें जो है क्या कहते हैं, कम मकदार में पानी जाएगा या कोई सुद्धा हो जाए। फॉर व्हाट सो एवर रीज़न देयर इज ए रेजिस्टेंस इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। और ये जब पल्मोनरी आर्टरी में होता है तो इसको हम पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन कहते हैं, और ये लगातार होता है, इसीलिए परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन के नाम जानते हैं। तो पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ गया क्योंकि यहाँ नैरोइंग हो गई, फिर उसके बाद पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन तो राइट वेंट्रिकल कैन नॉट पंप इनटू द लंग, यहाँ से जो है राइट ये जो है लंग में नहीं जा सकता है, ये यहाँ से फिर उसके बाद कहाँ जाता है, लंग में जाता है, तो ये लंग में नहीं जा पा रहा है, और पल्मोनरी परफ्यूजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर उसके बाद ऑक्सीजनेशन कम हो जाएगा, और ये हाइपॉक्सीमिया होगी। तो हाइपॉक्सीमिया एंड रिजल्ट तो हाइपॉक्सीमिया दोनों ही में होगा, लेकिन रूट अलग अलग है, वजूहात तो अलग अलग है। एक में जो है जो पुअर वेनस रिटर्न है उसमें कम मकदार में खून शुरू से ही जिस्म के खलियात से लौट करके फेफड़े तक पहुँचेगा, जब कब पहुँचेगा तो ऑक्सीजन की कम फराहमी होगी। लेकिन दूसरे में जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन खूब जो है आपको भर भर के नाली आ रही है, ब्लड वेसल्स पूरी कुसादा है, लेकिन तंगी कहाँ आ गई कि इसको जो है पल्मोनरी आर्टरी में जो है कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया। यही कहते हैं कि जैसे आपने केमिस्ट्री का रूल है कि अगर कोई भी रिएक्शंस कई स्टेप में हो रही है तो रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज बीइंग डिसाइडेड बाय द स्लोवेस्ट स्टेप। इसको इस तरीके से आप समझिए, आपको यहाँ पर एक टंकी है, बड़ी टंकी है, और यहाँ से पानी निकल करके फिर आपको दूसरी टंकी में आ रहा है, और इस टंकी को हमने बहुत ही पतला रखा है, ठीक है, और फिर उसके बाद अब जो दूसरी टंकी है वो खूब और चौड़ी हो गई है, ये खूब चौड़ी हो गई है। तो पानी यहाँ से तो खूब आया, ब्लड यहाँ से खूब आया, लेकिन यहाँ पर जो है क्या है, ये रुक जाएगा, यहाँ क्या है, रुक जाएगा। उसी तरीके से ये भी चौड़ा है, तो यहाँ पर जब तक इसको क्रॉस ओवर नहीं करेगा तब तक पानी यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। या इसको आप यूँ समझ लीजिए कि ये है, इसमें एक आपको इस तरीके से, और फिर उसके बाद छोटी इस तरीके से, और फिर उसके बाद बड़ी इस तरीके से आपको बाटल है, एक बाटल है जिसमें इसका जो है मुंह पहले इस तरह इतना खुला हुआ, फिर उसके बाद छोटा खुला हुआ, और फिर जो है बड़ा खुला हुआ। तो जब तक इस छोटे हिस्से से पानी नहीं गुजरेगा तब तक बड़े हिस्से में पानी नहीं आ सकता है। तो यही है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। वह फिर मकदार में खूब भर करके पाइप पूरी जो है आपके वेंस जो है पूरा भर भर के जो है ब्लड ले आ रही है, लेकिन ज्यों ही आपको पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचे देयर हैज़ बीन ए कॉन्स्ट्रिक्शन, वहाँ सकरा हो गया है, इसकी वजह से लंग में नहीं जा पाएगा, तो फिर जो है खून कम होगा तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी। तो दोनों का एंड रिजल्ट तो सेम है, और एंड रिजल्ट क्या, हाइपॉक्सीमिया। यहाँ भी हाइपॉक्सीमिया है, नो ऑक्सीजन, और यहाँ भी हाइपॉक्सीमिया है, बट द मेथड ऑफ हाइपॉक्सीमिया इज डिफरेंट। यहाँ पर कम खून शुरू से आता है और लंग में कम आता है, कम ऑक्सीजन हो गई। यहाँ पर शुरू में खून खूब आया वेनस रिटर्न से, लेकिन जो है पल्मोनरी आर्टरी में
रेजिस्टेंस होने की वजह से, वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाने की वजह से यहाँ पर रेजिस्टेंस पैदा हो गया। जैसे आप कहते हैं रेजिस्टेंस, जब आपने करंट पढ़ा होगा, ये आपको इस तरीके से रेजिस्टेंस दिखाया जाता है और फिर ये है। तो इस रेजिस्टेंस जो है, जो आपको करंट जाती है, करंट के फ्लो में ये रेजिस्टेंस क्या करता है, मुदाखलत करता है, खलत करता है। उसी तरीके से इस रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर आगे जो है कम खून होगा। दोनों में खून की कमी होगी, दोनों में ऑक्सीजन की कमी होगी, लेकिन तरीक़ा अलग अलग है। इसमें खून 100% पूरा भर के आता है, ये सारी कम आता है इसमें, और इसमें खूब भर के आता है। लेकिन यहाँ पर बॉटल नेक है, जिसे कहते हैं कमज़ोर कड़ी कौन। तो इसमें पल्मोनरी आर्टरी कमज़ोर कड़ी है, क्योंकि यहाँ पर आपको नैरोइंग हो गया है। इसकी वजह से ये आपको पुअर ऑक्सीजन या हाइपॉक्सीमिया देखने को मिलता है। और इसी हाइपॉक्सीमिया की वजह से ब्रेन टिश्यूज डिसफंक्शनल हो जाते हैं। बच्चा जो है इस तरीके से जर्क लेने लगता है, और यह गैर इरादी होता है, इनवॉलंटरी होता है। आइए आगे देखते हैं। अब 0 से 24 घंटे के अंदर ये हो रहा है, तो ये HIE, हीमोरेज और हाइपोग्लाइसीमिया, ये बहुत ख़तरनाक है। 24 से 72 घंटे के अंदर अगर आपको एक दिन 2 दिन गुजर गए, तब ख़तरा टल जाता है, कम हो जाता है। ये दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस स्टेट, दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस स्टेट, मोस्ट डेंजरस। और ये जो है ये लीस्ट डेंजरस है। खाए पिएगा, फिर उसके बाद अपने आप तभी मराहिल पर आ जाएगा, आपको सब कुछ सही हो जाएगा। इन्फेक्शन भी अगर है, सीवियर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर देंगे, ये भी ख़त्म हो जाएगा। मेनिंजाइटिस, मेटाबॉलिक, ये सारी चीज़ें लो कैटेगरी की हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको नुकसान जो होता है 0 से 24, इसीलिए कहते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी ज़िंदगी के लिए 24 घंटे बहुत ही मखसूस होते हैं। इसमें अगर सभी अफ़आल नॉर्मल नहीं हुए तो दिक्कत और दुश्वारी पैदा होती है। अब उसके बाद अलामात जो है झटके और झुरझुरी आएगी, आंखों का एक तरफ मुड़ जाना, मुंह चबाने जैसी हरकत, जैसे हमने आई कहा था, सांस रुक जाना, एपनिया, नीलाहट और बेहोशी। इसको नीलाहट को इंग्लिश में एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसको हम साइनोसिस के नाम से जानते हैं, CYANOSIS। ये पर्टिकुलर वर्ड है जो नीलाहट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, साइनोसिस। और दूध न पीना, तो ये एबनॉर्मल मूवमेंट, आई डिविएशन, लिप स्मैकिंग, इसे कहते हैं। और जो है चबाना जो है, और एपनिया, साइनोसिस, लेथार्जी, पुअर फीडिंग, दूध भी कम पिएगा। अब डायग्नोसिस में जेटिनस, बिनाइन स्लीप निकोलस, स्टारफ्लेक्स, ये जो है आपको डिफरेंशियल 3 मर्ज से इनको तफरीक करना पड़ता है, फ़र्क करना पड़ता है। अब उसके बाद डायग्नोसिस में ब्लड ग्लूकोज लेवल, कैल्शियम, इलेक्ट्रोलाइट, सेप्सिस, लंबर पंक्चर, ABG, EEG, क्रैनियल अल्ट्रासाउंड, MRI, ये सारे जो है आपको एलोपैथिक टेस्ट हैं जो आपको लेबोरेटरी में कराए जाएंगे जो है देखने के लिए। इसीलिए जो है हर 4 घंटे पर, 6 घंटे पर, सुबह और शाम आप परेशान हो जाते हैं कि जिसे कहते हैं कि जो है हीमोरेज, सबसे ज़्यादा खून कहाँ बर्बाद होता है, लेबोरेटरी में बर्बाद होता है। देखने के 5 ml कलेक्ट करते हैं, लेकिन आपको एक बच्चा अगर नौज़बिल्ला जो है NICU में हो गया तो पर डे सुबह शाम जो है 5 ml जो है आपका ब्लड लेते हैं, बहुत ज़्यादा आपका खून नुकसान होता है। ये जो है आपको, लेकिन अब ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको आप नहीं कराएंगे तो दिक्कत और दुश्वारी का सामना पड़ेगा। सारे इलाज का दारोमदार आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। अब स्टेबलाइजिंग में ABC ये प्राइमरी रूल है। ABC प्राइमरी रूल है, क्या है, एयरवेज आप जो है उसको साफ रखेंगे, ब्रीथिंग, सांस फ़ाल करने की कोशिश करेंगे और सर्कुलेशन बहाल करेंगे। तो ABC जब मरीज़ आपका है तो सबसे पहला डॉक्टर का, मालिज का ये फ़र्ज़ ऐन होता है
کہ اس کے ہوائی نالی کو صاف ستھرا رکھا جائے، کوئی رطوبات نہ ہو، کوئی غلاظت نہ ہو، کوئی بھوکس نہ ہو، کوئی بلغم نہ ہو، کوئی سدر نہ ہو. تو غذائی نالی کو، یہ ساری غذائی نالی میں سانس کی نالی، ایئر وے، سانس کی نالی کو صاف رکھا جائے. سانس کی نالی کو صاف رکھا جائے جس کو ایئر ویز کہتے ہیں. بریدنگ، اس کا جو ہے نظام تنفس بحال ہو، اور اس کا نظام دوران خون، یہ 3 آپ کو سسٹم کو بحال کرنا ہے کسی بھی قیمت پر. اس کا جو ہے آپ کو ریسپریٹری سسٹم بحال رکھنا پڑے گا، اور اسی ریسپریٹری سسٹم کو بحال رکھنے کے لیے سانس کی نالی کے سدے وغیرہ اخراجات غلاظت کو صاف کریں گے. سانس جو ہے اس کو اگر نہیں ہے تو مصنوعی آپ کرائیں گے، اور خون کا دورانیہ بحال کریں گے. اب اس کے بعد جو ہے کریکٹ ریورسیبل کاسز، اگر کوئی ریورسیبل کاز ہے جیسے ہائپوگلائسیمیا، گلوکوز کا لیول کم ہے تو آپ اس کو جو ہے دوا دیں گے. ہائپوکیلسیمیا، اگر کیلشیم کم ہے یا کوئی الیکٹرولائٹ کم ہے، میگنیشیم کم ہے، سوڈیم کم ہے یا امبیلنس ہے، تو سارے منرلس کو آپ ایڈیکویٹ جو ہے بیلنس میں لائیں گے. سیپسس تو انٹرا وینس اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں. اینٹی سیزر میڈیکیشنز ایبیفینو، باربیٹال اور لیوی ٹرائسیٹم اور فینیٹوسین، یہ سارے جو ہے آپ کو ایلوپیتھک علاج ہے. نتیجہ کیا؟ ڈیپینڈ آن دا کاسز. جو ہے گلائسیمیا کو ریلیٹ ارلی، اگر ہائپوگلائسیمیا ہے، شوگر لیول کم ہے تو ہائی HIV سیویئر میننجائٹس کا رسک ہو جاتا ہے. اگر جو ہے یہ آپ کو جو ہم نے انسیفیلیٹی بتایا، ہائپو اسچیمک انسیفیلیٹی اگر سیویئر ہے تو میننجائٹس، رسک آف نیورل ڈیولپمنٹ، اس کا اعصابی نظام میں صحیح طریقے سے پرورش نہیں ہو پائے گی، فعال نہیں ہو پائیں گے. اعصابی کمزوری کا بچہ شکار ہو جائے گا. اس کے اعصاب جو ہے بنیادی طور پر کمزور ہو جائیں گے. نیورو ڈیولپمنٹل ڈیلے، جو اعصابی نظام بہت دیر میں آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتے ہیں. جو اور یونانی نقطۂ نظر کیا ہے بھائی؟ تسنج نوزائر، عموماً اسے ہم تسنج کو سیرا اطفال کے نام سے بھی جانتے ہیں، بچوں کی مرغی کے نام سے بھی جانتے ہیں. اب کے قریب سمجھا جاتا ہے سوئے مزاج دماغ کا سوئے مزاج ہو گیا. غلبہ بلغم، سردی، نمی، غلبہ صفرا یا حرارت، تیزی، بے چینی، جھٹکے، بخارات، عفونیت، نزول اوریزیا کی کمزوری. وصول علاج کیا ہے؟ تسکین دماغ، اصلاح مزاج، دفع مواد، تقویت اعصاب اور حفظان صحت. اور یہ میں نیو نیٹل کے کیس میں بار بار یہ نوٹ آپ کو دے رہے ہیں کہ نوزائیدہ میں یونانی ادویات اندرونی طور پر صرف ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں ہی ہاتھ لگایا جائے، کیونکہ ٹاکسیسٹی کا خطرہ ہوتا ہے. 28 دن کے اندر یونانی ادویات سے احتیاط کیا جانا بہتر ہے، کیونکہ بہت ہی باریک اور نازک مسئلہ ہوتا ہے. ہم یونانی کو ایسا نہیں کہ کمتر سمجھ رہے ہیں، لیکن کچھ نزاکت کی بنا پر یہ آپ کو تھوڑا سا یہاں پر احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے. اب یہ جو ہے ہائپرٹک اسچیمیا، جو وہی ہم نے بتا دیا، وہی کہ برتھ اسپیکسیا، آکسیجن کی کمی ہوگی جس کے نتیجے میں جو ہے آپ کو کنورژن ہوگا. اور اس آکسیجن کا کمی کی وجہ 5 ہم نے بتایا تھا، برتھ اسپیکسیا، پھر اس کے بعد ہائپو ٹینشن، لو بلڈ پریشر، سیویئر انیمیا، کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیز اور پرسسٹنٹ پلمونری ہائپرٹینشن. وہی چیز جو ہم نے آپ کو پہلے وضاحت کی تھی. اسی کو جو ہے آپ کو یہ اس کنونشن کا دکھایا گیا ہے HIE، ہائپوکسک اسچیمک انسیفیلوپیتھی. دماغ کے ٹیسوز کا صحیح طریقے سے فعال نہ ہونا، ان ایکٹیو ڈس فنکشن آف برین ٹیسوز جو ہے یہ ہے. پھر اگر انفیکشن ہے، صدمہ ہو جائے گا. یہ میٹابولک میں جو ہائپوگلائسیمیا، ہائپوکیلسیمیا، ہائپومیگنیسیا، اور پھر اس کے بعد سوڈیم کی جو ہے کمی یا زیادتی ہو سکتی ہے، بلیروبین کی بھی کمی یا زائد ہو سکتی ہے. تو دیز آر دا سم کرکس آف دا کنورژن. فی امان اللہ. اگر آپ پسند ہے تو دوسروں میں بھی جو ہے اس کو تقسیم کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. فی امان اللہ. اس سے ہمیں توانائی اور ہمت بڑھتی ہے کہ اور زیادہ مزید ویڈیو آپ کی خدمت میں لا سکیں.